السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینڈ سائنس اکیڈمی. اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیک گراؤنڈ ریموول کے حوالے سے فائبر پہ گگ کریٹ کی تھی. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس فائبر پہ جو گگ امیجز ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے بنانی ہے. اس مقصد کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ امیج کے مختلف قسم کی امیجز لینی ہیں اور ان کے بیک گراؤنڈ ریموو کر کے، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح سے وہ پھر انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں گگ امیج کس طرح سے پریپیئر کرنی ہے اچھے انداز میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بنائیں گے، لیکن ابھی آپ کے سامنے ایک موضوع ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ امیجز ڈاؤن لوڈ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نا ہم ایک موبائل فون سے ریلیٹڈ امیجز نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سمپل، مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ سمپل امیجز ہوں جن کا بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی سمپل بیک گراؤنڈ والی امیج آ جائے جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہو، تو اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہیں تو کیا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل ایک امیج ہے، اس کو ہم جو ہے وہ سیو کر لیتے ہیں. اوکے، جب آپ سیو کرتے ہیں تو وہ آپ کی ڈائریکٹری میں تو چلی جائے گی، لیکن یہیں سے آپ اس کو پک کر کے، ٹھیک ہے، اور فوٹو شاپ پہ جا کے آپ اس پہ ڈراپ کر دیں. اوکے، یہ آپ کے سامنے اس طرح سے شو ہو جائے گی. اوکے، آپ ہم چاہتے ہیں کہ اوریجنل فائل بھی رہے، اور اس کو ہم کنٹرول جے کر کے اس کی ایک ڈپلیکیٹ لیئر لے لیتے ہیں اور جو مین لیئر ہے اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں. اس لیئر کے اوپر اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہیں پر ہمارا کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف طریقے ہیں. پہلا میتھڈ آپ دیکھیں، اگر ہم کوئک سلیکشن ٹول یعنی سلیکشن ٹول میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر آبجیکٹ سلیکشن پہ کلک کر لیتے ہیں. اوکے، اور پھر اس ایریا میں جا کے اور آپ اس طرح سے سلیکٹ کر لیں تو آپ کیا دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ یہ آبجیکٹ کو سلیکٹ کر لے گا. ایک میتھڈ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کنٹرول سی اور کنٹرول وی کریں تو آپ کے سامنے اس کو بھی ہائڈ کریں گے تو وہ اس کا یعنی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریموو ہو چکا ہوگا. اوکے، اب اس لیئر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ایک میتھڈ آپ نے دیکھا ہے، آپ آبجیکٹ سلیکشن ٹول اپلائی کرتے ہیں بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کا کلر ایک ہونا چاہیے، یا وائٹ یا بلو یا یلو یا اینی ادر کوئی بھی کلر، بٹ ایک کلر ہو، کوئی کلر کمبینیشن یا کوئی مکس اپ کلر نہیں ہونا چاہیے. اوکے، اب آپ دیکھیں ایک میتھڈ تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئک سلیکشن ٹول لے رہے ہیں تو اس سے آپ کو آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ اس طرح سے سلیکٹ ہوتا ہے مگر کچھ ایجز رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کنٹرول ڈی کر دیں، یہ ڈس سلیکٹ ہو جائے گا. کوئک سلیکشن ٹول یہاں پر اپلائی نہیں ہو سکتا. اوکے، نمبر 2 میتھڈ جو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایک میجک وین ٹول ہے. اس پہ جب آپ کسی ایک کلر کے اوپر جو ایک جیسا کلر اس پہ کلک کریں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا کلر سلیکٹ کر لیتا ہے. بہترین یہ ہے آپ کوئک سلیکشن ٹول یعنی سلیکشن ٹول میں آپ جو ہے وہ آبجیکٹ سلیکشن ٹول لیں اس کنڈیشن میں جب ایک آبجیکٹ اور وائٹ بیک گراؤنڈ ایک کلر کا ہو. اوکے، اور بیک گراؤنڈ کا کلر آبجیکٹ کے کلر سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اوکے، دوسرا میتھڈ آپ کے پاس یہاں پر ایک میگنیٹک لیسو ٹول ہے. اس سے آپ ایک جگہ پہ سلیکٹ کر کے اور اس کے گرد جب آپ یہ میگنیٹک لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے، تو بھی یہ آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے، پھر کنٹرول سی اور وی کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح میں جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل صفائی میں آپ کر کے تو آپ یہاں سے بھی آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے باہر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کنٹرول ڈی کر دیتا ہوں. یعنی میگنیٹک لیسو ٹول جو ہے وہ بھی یہی کام کرے گا. اوکے، اور باقی یہاں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. ریکٹینگل نہیں آپ لے سکتے، آپ تو کراپ کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹول میں آپ کا جو ہے نا آبجیکٹ سلیکشن ٹول بیسٹ ٹول ہے. اوکے، اس سے آبجیکٹ ریموو ہو جائے گا. اس کے بعد ایک ٹول ہے یہاں پر آپ کا میجک اریزر ٹول. یہ بھی اسٹوڈنٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ میجک اریزر ٹول بیک گراؤنڈ اریزر ٹول میں تو آپ سلیکٹ کر کے صرف بیک گراؤنڈ کو جہاں سے کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ سب سے لاسٹ میں ایک ٹول ہے میجک اریزر ٹول. اس پہ کلک کریں نا، جو ایک جیسا کلر ہوگا نا پورے مطلب پکچر کے اندر، وہ یہ اس کو ریموو کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ہے میجک اریزر ٹول کا کمال. یہ بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کا سیکنڈ میتھڈ ہو گیا. صحیح ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی میتھڈ تو ہے، اور بھی بہت سارے میتھڈ ہیں، لیکن وہ یہاں پہ یوز کرنے کا مقصد ہے ویسٹنگ آف ٹائم. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم پھر سے واپس. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کچھ ایسے امیج بھی ہیں ہمارے پاس. مثال کے طور پر میں
आपको ये बता देता हूँ, ना ये येलो कलर में, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा ईजीली। आप देखते हैं हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम मतलब काटना चाह रहे हैं, जिसमें से उस ऑब्जेक्ट को निकाल भी सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लेके जा सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर मुझे वो इमेज देख लेने दें कोई, ये देखें, ये सेल फोन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मगर ये फिंगर्स का कुछ हिस्सा आएगा इसके अंदर से, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से उस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकें। तो ये देखें, इस पर बट वाटर मार्क लगा हुआ है, ठीक है। कोशिश करनी है आपने, बल्कि करना है कि वाटर मार्क वाली इमेजेस नहीं लेनी, सही है। तो यहाँ पर ठीक हो गया, अच्छा जी। बहरहाल जो भी है, मैं आपको एक यानी कि ये जो अभी इमेज आ रही है ना, ये वाली इमेज, इसमें से ये मोबाइल जो सेल फोन है ना, सिर्फ इसको हमने काटना है। मतलब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मल्टी ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से आप एक ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना चाह रहे हैं, ये बैकग्राउंड रिमूव करने के भी मतलब कैटेगरी में आ जाता है। इसको सिलेक्ट कर लें, फोटोशॉप में ले जाएं, और जो भी नई इमेज होगी उसको लेयर पैनल पे ड्रॉप कर दें, ओके। अब इसको आपने क्या करना है, इसके लिए पेन टूल यूज़ करेंगे हम, ओके। यहाँ एक काम करते हैं, पहले इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट के साथ फिंगर्स आएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखें बेहतरीन है, इसने फिंगर्स को चूज़ नहीं किया। बट यहाँ पर देखेंगे तो तिरछा मिर्चा है, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, तो एक्यूरेसी नहीं है। कंट्रोल डी कर लें, पेन टूल पे आ जाए। पेन टूल बेहतरीन टूल है, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक्यूरेसी से निकाल लेगा, ओके। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर क्लिक करते हुए, ये मैंने छोड़ दिया है बट आपने छोड़ना नहीं है, यहाँ पर रखते हुए आपने इसको इस तरह से टर्न करना है, ओके। जो दो एंड होंगे, ये सिरा है, एक इस तरफ है, आल्ट प्रेस करते हुए जो रेड वाला है ना मिड, इस पर क्लिक कर दें, एक एंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जाके फिर इसको आपने चाहे शिफ्ट को प्रेस रखते हुए क्लिक कर दें, स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। फिर से ये कर्व है, यहाँ पे रख के एक कर्व बना लें, इस तरह से आपको शेप नज़र आ रही है, ओके। फिर आपने आल्ट प्रेस करते हुए ये दोनों एंड के दरमियान में क्लिक कर देना, एक एंड रिमूव हो जाएगा, ओके। फिर से आप देखें यहाँ पर कीज़ बटन भी हैं, मगर वो ये देखें ना, यहाँ पर इधर तक क्लिक कर लें, ओके। फिर आप यहाँ पर बल्कि इधर ले आएँ, ठीक है, क्लिक करते जाएँ इसको। फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ ये हम ऐसे कर लेते हैं, ओके। अभी एक्यूरेसी इसमें ये है कि इसमें फिंगर्स है ना, और कुछ पिक्सल्स भी रेजोलेटेड अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ ये मोबाइल बाई निकालना मैंने, ठीक है। ये देखें, इसको थोड़ा सा टर्न कर लिया, ऑब्जेक्ट अच्छी हो, पिक्चर अच्छी होगी ना, रेजोल्यूशन अच्छी होगी, तो आप बड़ा इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से कर्व में सिलेक्ट किया, ओके, आल्ट प्रेस करके इसको रिमूव कर दिया, मतलब क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये खुद ब खुद कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं पहले चेक करके देखता हूँ, ठीक हो गया, फिंगर वाला हिस्सा भी। अब ये देखें, ये सिलेक्ट हो चुका है। जैसे ये सिलेक्ट हो जाए, आपने राइट क्लिक करना है, और मेक सिलेक्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, वी प्रेस कर लें, अब कंट्रोल सी और वी कर लें, आपके सामने इसकी कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट वहाँ से बाहर निकल आया, ठीक है, मेन देखें ये, और ये ऑब्जेक्ट बाहर भी आ गया, ओके। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो एजेस में आप इसको बाद में हल्का सा सेलेक्ट करके रिमूव करके क्लियर कर सकते हैं। बेहतरीन ये होता है इसका पेन टूल, ओके। पेन टूल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल जे कॉपी रखनी वैसे ज़रूरी थी, हमें इस दफ़ा भूल गए थे, ठीक है, कॉपी ज़रूर लेनी है आपने, ओके। ये तरीकाकार आपने देखा एक, और इस पर रख के अगर हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ये है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है, इससे सिलेक्ट कर लें, और अब दोनों में आप फ़र्क देखेंगे, ठीक है। जब सिलेक्ट होगा थोड़ी देर में सिलेक्शन हो जाएगी। अब आप जब इसको कंट्रोल सी वी करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन में देखिए ना, ये कितनी साफ़ है, इसके एजेस, ठीक है ना, स्ट्रेट है। और लेकिन यहाँ पर आपको लगेगा, देखें एजेस इसके स्ट्रेट नहीं है, बल्कि सही फॉर्म में नहीं आए। तो इसलिए आपने मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसकी पहले कंडीशन सिचुएशन चेक करनी है, ऑब्जेक्ट किस तरह का है, ठीक है। कोई भी राउंडेड शेप हो, कोई भी चीज़ आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो हैं, ये बैकग्राउंड जो भी आ रही है, तो आपको सिर्फ ये सेल फोन का सिर्फ फ्रंट चाहिए, तो
तो वो भी आप पेन टूल से बाहर निकाल सकते हैं। सही हो गया। अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरी इमेज आ जाती है, ठीक है, तो आप आ जाएँ unsplash.com पे चले जाएँ। यहाँ पर पीपल्स में कोई इमेज आपको जो है वो मतलब जिसका आप चाहें बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए से भी कर सकते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर ये एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसके ये देखें ये एक क्लियर इमेज है, ठीक है ना, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप सबसे पहले ग्रीन वाले पे क्लिक करें, ओरिजिनल साइज पे आ जाए। जब भी अपने क्लाइंट के लिए काम करना है ना, तो अपने क्लाइंट से बोलना है कि इमेज आपको अच्छी रेजोल्यूशन वाली प्रोवाइड की जाए। अगर इमेज आपको अच्छी रेजोल्यूशन वाली प्रोवाइड नहीं की जा सकती, यानी क्लाइंट के पास दूसरी इमेजेस हैं, तो फिर आपको उसके लिए उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। चाहिए, अब ये देखें, पहले मैं इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली तौर पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और फिर देख लें काफ़ी हद तक उसने सिलेक्शन कर ली है। लेकिन जो चीज़ें मिसिंग हैं, उन मिसिंग एरियाज़ को आपको खुद से करना पड़ेगा। फेस पे आ जाएं, क्विक सिलेक्शन पे क्लिक करें, इस तरह से जो एरिया यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हो गया सिलेक्ट, ओके हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें, ओके, यहाँ पर आपने इन फिंगर्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये देखें ऐसे सिलेक्शन लें इसकी, और जो एरिया रिमूव करना है वो आप रिमूव कर लें। सही है, ये देखें थोड़ा सा और सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली हो गया। ये एरिया यहाँ पे सिलेक्ट होने वाला है, इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये देखें एक जैसे कलर में सिलेक्शन होती है। अब ये देखें ये और ये हाथ के और इसके कलर में ना कुछ ख़ास फ़र्क नहीं था, इस वजह से वो इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा था। देखें हो गया सिलेक्ट। कुछ एरिया यहाँ पर ये देखें डिसलेक्ट है, इसको क्लिक कर लें, ठीक है, सिलेक्शन हो चुकी है। सही है, तो इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल सी और वी करना है, जस्ट कंट्रोल सी वी। और ये देखें जैसे मैं ऐड करता हूँ बैकग्राउंड रिमूव, तो जितनी भी जैसी भी इमेज होगी आप बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये एक मेथड हो गया। पेन टूल से अगर आप चाहते हैं तो पेन टूल से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और मैजिक इरेजर टूल इधर अप्लाई होता है कि नहीं देख लेते हैं। इस लेयर को हाइड कर देते हैं, इस लेयर की डुप्लीकेट लेयर लेते हैं, इस लेयर को भी हाइड कर लेते हैं, इस लेयर पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम मैजिक इरेजर टूल को इस्तेमाल करके देखते हैं। देखें शेडो, इसमें शेड वगैरह जहाँ पे है ना, फेस पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। देखें फेस का इफेक्ट और इसके इफेक्ट में मतलब कंट्रास्ट आ रहा है, जिसकी वजह से एक जैसा इफेक्ट जब हो जाए तो जब हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के कुछ हिस्सों को भी रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर अब आप कहें कि जी यहाँ पर मैजिक इरेजर टूल क्यों नहीं काम कर रहा, तो कॉमन सेंस है कि दोनों में कंट्रास्ट आ रहा है, कलर कॉम्बिनेशन, कलर कंट्रास्ट की वजह से भी ये इस तरह से हो जाता है। सही हो गया। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट भी आप रिमूव कर सकते हैं। क्लाइंट की तरफ से अगर आपको कोई गूगल की तरफ से इमेज आती है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कि इमेज अगर गूगल की तरफ से आ जाती है तो उसको भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई जो है ना क्या कहते हैं इमेज देखते हैं, फैमिली इमेज। मिसाल के तौर पर मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, फैमिली पिक्चर है ना, मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमें कोई क्लाइंट की तरफ से काम आ जाता है कोई, तो ये देखिए मिसाल ये है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करें जी, बैकग्राउंड चेंज तो बात की बात है ना, अभी रिमूव की बात हो रही है। तो अगर क्लाइंट की तरफ से काम आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, हम इसको डील कर रहे हैं सर, ठीक है। फर्स्ट गिग आप अगर बना रहे हैं बैकग्राउंड रिमूवल की, तो आपको उसका काम भी आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आ गया। आप देखें क्विक सिलेक्शन, यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल तो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई एक जैसा कलर नहीं है, डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ पे आप पहले अप्लाई करके देखें क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, लेकिन सबसे पहले आपको बोला है जो भी काम करना है कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर लेनी है, मेन लेयर को हाइड कर देना है। ओके, ये लेयर होनी ज़रूरी है ताकि अगर गलती हो जाती है अब इसको रेस करके दोबारा से डुप्लीकेट लेयर ले सकें, ठीक है। तो अब इसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या वहाँ पे जाके भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ही ऑप्शन होती है दोनों की, हमारा बाहर भी ऑप्शन दी हुई है बेसिकली, ठीक है ना। तो अब ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है इसने, देखें ऑटोमेटिकली अब ये खुद से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखें आपको इतना कितनी मेहनत, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो या मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और ये देखें सिलेक्शन करते हुए उसके हैंड जो है ना वो आता है, कपड़े हैं जो है, ठीक है ना, क्लॉथ है, ये शर्ट के साथ मैच कर रहा है, देखें। और यहाँ तक ओके। और देखें जैसे मैं कंट्रोल सी वी कर लेता हूँ और हाइड करता हूँ, देखें बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। कैसी भी इमेज होगी आप इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि पहले मैंने वीडियो देख की थी जो बैकग्राउंड से रिलेटेड थी, तो वहाँ पर जो है ना हम बेसिक को ज़्यादा डील कर रहे थे, ठीक है। अब ये इमेज आ जाती है,
इस इमेज को भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं किसी भी किस्म की। अब ये देखें, इसका बैकग्राउंड वाटर मार्क लगा हुआ है, तो इस पर ज़्यादा काम होने वाला है, ठीक है ना। तो वाटर मार्क वाली इमेज को रिमूव करना आसान नहीं है, इस पर भी वाटर मार्क लगा हुआ है, ओके। तो उसके लिए जैसे एक मिसाल के तौर पर ये आ गई है एक इमेज, ठीक है ना। यहाँ पर इमेज के ऊपर ये चीज़ लगी हुई है ना, इसको जो हम रिमूव कर सकते हैं इरेजर टूल से। सेव करते हैं इमेज को, सेव करने के बाद इमेज आ जाएगी। इस इमेज को हम जो है ना, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं लेयर पैनल में। फोटोशॉप में जब भी एक नई इमेज लानी है, लेयर पैनल पे जाके ड्रॉप करनी है, ओके। अब ये चीज़ तो रिमूव हो जाएगी। पहले इसकी एक डुप्लीकेट आप कंट्रोल जे करके लेयर ले लें, मेन लेयर को हाइड कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे इरेजर टूल पे आके बैकग्राउंड रिमूव कर दें, सिंपल। और जो टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इरेजर टूल को लेते हुए उस टेक्स्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। देखें इसमें क्या मुश्किल था, ये भी सिंपल इमेज थी। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, लेकिन कुछ एरिया रह गया, वो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे। फिर से आप यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल पे आ जाएं और ये देखें इनके दरमियान में ये वाइट एरिया था। कंट्रोल जी करके इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ठीक है ना, ताकि मुझे क्लियर नजर आए। ये देखें, इस पर क्लिक किया, हो गया रेज, ओके। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये क्लिक किया, इरेज हो गया। तो एक्यूरेसी इस तरह से आती है, ये देखें। तो मेरा ख्याल नहीं है कि अगर किसी भी किस्म की इमेज हो तो आप उसका बैकग्राउंड रिमूव ना कर सकें, ठीक है। मैंने मुख्तलिफ मेथड्स आपको बता दी हैं, इन्हीं मेथड्स के ज़रिए से आप जो है वो बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ और अभी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ठीक है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं की है, तो नेक्स्ट अब उसी की बारी आ रही है, ठीक है। कोई और इमेज लेते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ, फिर इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई एक इमेज लेते हैं, सपोज इस इमेज के साथ हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं। क्लाइंट से आपको इस तरह की इमेजेस ही मिलेगी ना, जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, कोई अच्छी रेजोल्यूशन वाली ही मिलेगी। तो फोटोशॉप में आ जाए, ठीक है, लेयर पैनल पे जाके इमेज को ड्रॉप कर दें, ओके, जूम कर लें। अब एक काम इसमें आता है, पहले इसको कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लेयर ले ली है, इस लेयर पे जाना है और क्विक सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है, जस्ट सिलेक्ट एंड मास्क। आपने एक मास्क लेना है इसके लिए, ओके। जब मास्क लेंगे अब आपने यहाँ ट्रांसपेरेंसी अपनी 50% रख लेनी है, ओके। ट्रांसपेरेंसी 50% रखने के बाद ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके, ओके। और फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। बाकी काम तो बात का है, जब आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये जो हाईलाइटेड होगा ना ऑब्जेक्ट, वो आपका सिलेक्ट कर रहा है, देखिए हो रहा है शो, बेहतरीन चीज़ है। और वो जो देखें बालों के साथ आपको यहाँ पर कुछ एरिया नज़र आएगा ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो उसको आपने अब लेस देन बटन प्रेस करते हुए उस एरिया को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये क्विक सिलेक्शन में होता है, तो एक बार क्लिक करने से ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये उसको रिमूव कर देता है। मिसाल यहाँ पे रख के एक बार क्लिक करें तो उससे करीब करीब जितना भी एरिया होगा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अगर ज़्यादा होता है, देखिए बाल बहुत ज़्यादा ख़राब किए तो कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी। अब नॉर्मल सा इफेक्ट है ना, तो उसके लिए यहाँ पर आपने डायरेक्ट नहीं क्लिक करना, यहाँ से सिलेक्शन लेनी है, रिफाइन एजेस और ब्रश पे क्लिक करके आप जब करेंगे तो आल्ट प्रेस करते हुए करें, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे यहाँ से क्लियर कर रहा है ना, देखेंगे इस तरह से, ओके। ये मास्क टूल है, उसका मैं आपको फ़ायदा बताऊंगा, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई इमेज नई इमेज यानी कि ऐसी इमेज है जिसके साथ कोई इफेक्ट लगा रहे हैं और कल को चाहते हैं कि वो इफेक्ट में भी चेंजेस की जाएं, तो ये बहुत बेहतरीन है कि आप उसके साथ जो है मास्क लगा दें। मास्क में ये ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ और क्या किया जा सकता है इसके साथ। ये वाला एरिया देखें, ये हाइड, यहाँ पे ग्रीनिश सा शो हो रहा है ना, अभी मैं ओके नहीं किया, यहाँ तक ओके हो गया। अच्छा, इतना करने के बाद आपने करना है यहाँ पर कि इसके यहाँ पे ना स्मूथ का लफ्ज़ है, उसको थोड़ा सा मूव करें, ठीक है, स्मूथनेस बढ़ाएं इसकी। और यहाँ पे ना एक है शिफ्ट एज, यहाँ पर आप शिफ्ट एज पे भी थोड़ा सा करेंगे ना, तो इसके एजेस जो है ना, एजेस वो देखें शार्प हो जाएं, ओके। इसके बाद ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट, ये देखें बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मगर अभी आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसमें कुछ काम करना है, तो आप यहाँ पर इस लेयर पे क्लिक करें, ठीक है। ये मास्क है इसका, इस मास्क लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, फिर से विंडो आ जाएगी, आप सिलेक्ट एंड मास्क में दोबारा से एंटर हो सकते हैं। देखिए
ٹھیک ہو گیا. اور پھر سے آپ اس کے اندر اگر چاہیں مزید ایڈیٹنگ جو آپ کر سکتے ہیں, مطلب مزید شفٹ ایج کر کے اوکے کر کے, مطلب جو بھی آپ چاہیں اس میں مزید ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تیسرا میتھڈ تھا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ آبجیکٹ کو کہ بیک گراؤنڈ کو کس طرح سے ریموو کرتے ہیں, میں نے جتنے میتھڈز آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں, تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید دلچسپ جو ہیں وہ ویڈیوز جو ہیں وہ بآسانی ملتی رہیں. تو اسٹوڈنٹ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.